Hello everyone, welcome to Object Oriented Programming. Today I am going to teach you another topic, and that topic name is destructor. In last video we had learned constructor and example of constructor, but today it's opposite. Today we are going to learn another topic, opposite topic of constructor, that is destructor. Now first of all, what is destructor? Now, destructor is also a special member function that work just opposite to constructor. And unlike constructor that are used for initialize object, and destructor destroy the object. Destructor is used to delete or destroy the object. Constructor किसके लिए used होता था? Initialize ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए, वाइल यहाँ पे मेमोरी डी एलोकेट करने के लिए डिस्ट्रक्टर यूज्ड होता है. सिंटैक्स है सेम एज क्लास नेम. ठीक है, कंस्ट्रक्टर के नेम जैसा ही हमें यहाँ पे क्लास नेम लिखना है, सिर्फ डिफरेंस है ये है क्लास नेम के आगे एक टिल्ड साइन होनी चाहिए, राइट, एंड देन कोड लिखना है. दैट इज द सिंटैक्स ऑफ डिस्ट्रक्टर. Now, similar to constructor, the destructor name should exactly match with the class name as shown in this syntax. A destructor declaration should always begin with tilde symbol, as here I mention in syntax, right? Now, a destructor is automatically called when the program finish execution. Now when this destructor is called, when the program finish execution, it will call automatically. And another condition, when a scope of the particular parenthesis particular block is end, then destructor is called. It means when we close our parenthesis और उसमें destructor लिखा होगा, तो parenthesis जैसे ही हम close करेंगे destructor call होगा, right? जैसे कि local variable है उसका scope end होता है, right? Third condition, when destructor automatically call, when you call the delete operator. डिलीट ऑपरेटर हमने अगर मैन्युअली कॉल किया है तो डिस्ट्रक्टर जो है वो ऑटोमेटिकली कॉल होगा. नाउ आपको मेन इंपॉर्टेंट डिस्ट्रक्टर में कौन से पॉइंट याद रखने हैं, लाइक डिस्ट्रक्टर नेम शुड बिगिन विथ टिल्ड साइन एंड मस्ट मैच द क्लास नेम. देयर कैन नॉट बी मोर देन वन डिस्ट्रक्टर इन अ क्लास. लाइक कंस्ट्रक्टर वी कैन क्रिएट 2 or 3 कंस्ट्रक्टर, बट डिस्ट्रक्टर कितने होने चाहिए? सिंगल. Unlike constructor that can have parameters, but destructor do not allow any parameter. Destructor में कोई parameter नहीं होगा. Destructor do not have any return type, just like constructor. And when you do not specify any destructor in a class, compiler generate a default destructor and insert it into your कोड, राइट. ऑटोमेटिकली जो डिफ़ॉल्ट डिस्ट्रक्टर होगा वो कॉल होगा, हमने अगर इंसर्ट नहीं किया होगा तो. क्लियर? फाइन. नाउ दैट इज द थियोरी ऑफ डिस्ट्रक्टर. नाउ लेट मी एक्सप्लेन एग्जाम्पल ऑफ डिस्ट्रक्टर. नाउ फॉर दैट लेट मी स्टार्ट टर्बो सी. नाउ फॉर डिस्ट्रक्टर एग्जाम्पल हम टेस्ट क्लास क्रिएट करेंगे, उसमें एक नंबर होगा, सपोज काउंट वेरिएबल, उसको ऐड करेंगे. जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो काउंट वेरिएबल से हमें पता चलेगा कि कितने ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहे हैं, और डिस्ट्रक्टर में वो काउंट वेरिएबल को माइनस करेंगे तो वहाँ हमें पता चलेगा कि कितने ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्ट्रॉय हुए हैं. ठीक है, तो हम फॉर दैट just write first header file has include iostream.h and has include conio.h. Now create a class, just test in that. Okay, before that we can create here count variable, but count variable यहाँ पे create करेंगे तो वो object wise हम नहीं कर पाएंगे, तो let us local variable हम लेते हैं count equal to 0. We can also take static variable here. नाउ पब्लिक में ही हम कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर लिखेंगे, तो पहले हम कंस्ट्रक्टर से मेमोरी एलोकेट करेंगे. डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया है, इन डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर वी कैन ऐड काउंट वेरिएबल एंड देन प्रिंट
that value of count variable like object created number, and in that here count, right? count प्रिंट करेंगे. यहाँ पे हमने सी आउट लिखा है, उसकी जगह पर आके काउंट. ठीक है. नाउ डिस्ट्रक्टर एक क्रिएट करते हैं विथ टिल साइन. डिस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं. डिस्ट्रक्टर क्रिएट करने के आगे यहाँ पे टिल साइन होती है. टिल साइन एस्केप की के नीचे होती है. ठीक है. नाउ डिस्ट्रक्टर नेम सेम एज क्लास नेम. यहाँ पे हमें कोड लिखना है लाइक सी आउट डिस्ट्रक्ट ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हुआ है तो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड नंबर. कौन सा ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हुआ है, ठीक है, तो वो काउंट में स्टोर होगा तो काउंट प्रिंट करेंगे और फिर 1 काउंट माइनस कर देंगे. ठीक है. तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो रिमूव हो गया, इसलिए हमें एक टेम्पररी वेरिएबल लिया है काउंट उसको मेंटेन करने के लिए. देन इंटीजर मेन. लेट अस राइट द स्ट्रक्चर ऑफ इंटीजर मेन. Now first create test class object, for example test t1. ठीक है. Now उससे पहले हम एक मैसेज प्रिंट कर देते हैं लाइक सी आउट में हम मैसेज लिखते हैं कि इनसाइड मेन, क्योंकि हमने ऐसा भी लिखा है कि जब हम मेन पर्टिकुलर ब्लॉक को क्लोज करेंगे तभी भी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा. अगर उसमें पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का स्कोप ख़त्म होता है तभी भी कंस्ट्रक्टर कॉल होता है. ठीक है. तो हम देखते हैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने एक ब्लॉक बना दिया. ठीक है. ये जो है वो डिफरेंट ब्लॉक है ना. उसमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैसेज पहले तो लिख देते सी आउट इनसाइड फॉर एग्जांपल ब्लॉक. नाउ ब्लॉक में हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं लाइक t2 एंड t3. ठीक है. अब एग्ज़िट होते हैं, उसका भी मैसेज प्रिंट करते हैं एग्ज़िट फ्रॉम ब्लॉक. ठीक है. तो हमें पता चलेगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे डिस्ट्रॉय हुआ, राइट. फिर से मेन में आ गए तो फिर से हम मैसेज प्रिंट करते हैं सी आउट इनसाइड मेन. अगेन मेन में आ गए हम. फिर अनदर ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉल होगा. ठीक है. सी आउट एग्ज़िट फ्रॉम मेन. मेन से एग्ज़िट होंगे. तो अब डिस्ट्रक्टर कब कॉल होगा? फॉर एग्जांपल यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे t1 तब यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉल होगा फॉर t1. ठीक है. फिर ब्लॉक में जाएंगे तो यहाँ पे भी कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो यहाँ पे भी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा फॉर t2 एंड t3, राइट. t2 एंड t3 के लिए कंस्ट्रक्टर कॉल होगा. नाउ t2 और t3 का ब्लॉक कहाँ पे ख़त्म होता है? यहाँ पे. जैसे ही क्लोज हुआ यहाँ पे ख़त्म होता है. ठीक है. ब्लॉक स्कोप. तो यहाँ पे क्या कॉल होगा? डिस्ट्रक्टर कॉल होगा फॉर t2 एंड t3. ठीक है. t4 t1 का अभी भी स्कोप ख़त्म नहीं होगा तो t1 तो अभी भी ऑब्जेक्ट रहेगा. फिर t4 क्रिएट किया तो यहाँ पे फिर से कंस्ट्रक्टर कॉल होगा कंस्ट्रक्टर फॉर t4, राइट. एंड एग्ज़िट फ्रॉम मेन. जैसे ही यहाँ पे स्कोप ख़त्म होगा यहाँ पे क्या होगा? डिस्ट्रक्टर कॉल होगा फॉर t1 एंड t4. ठीक है. यहाँ पे डिस्ट्रक्टर कॉल होगा. सो जब कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तब काउंट की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी? अभी काउंट की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे काउंट इक्वल टू 1 होगा. ठीक है. फिर से काउंट यहाँ पे क्या होगा? काउंट इक्वल टू फॉर t2 2 एंड फिर से काउंट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो काउंट इक्वल टू 3 हो जाएगा. ठीक है. नाउ डिस्ट्रक्टर कॉल होगा तो यहाँ पे क्या मैसेज प्रिंट होगा? लाइक डिस्ट्रक्टर में जो मैसेज है वो प्रिंट हो जाएगा. जब डिस्ट्रक्टर कॉल होगा तब डिस्ट्रॉयड ऑब्जेक्ट नंबर 2 एंड 3 यहाँ पे ये मैसेज प्रिंट होगा. जब डिस्ट्रक्टर कॉल होगा तब 2 एंड 3 का जो ऑब्जेक्ट है वो डिस्ट्रॉय हुआ है वैसा मैसेज प्रिंट होगा. नाउ t4 आएगा तो अनदर ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा. सो अब काउंट फिर से क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा.
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे काउंट जब डिस्ट्रक्टर कॉल होगा तब काउंट माइनस माइनस होगा, तो काउंट फिर से 2 होगा एंड काउंट 2 बार कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो 2 एंड काउंट इक्वल टू 1 हो जाएगा। फिर से यहाँ पे प्लस होगा, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो काउंट की वैल्यू फिर से 1 हो जाएगी एंड एट द एंड यहाँ पे काउंट फिर से 2 प्रिंट होगा एंड काउंट फिर से 1 प्रिंट होगा और माइनस हो जाएगा, तो एंड में काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, लेट अस कंपाइल, 0 एरर, लेट अस रन, सी इनसाइड मेन। फिर फर्स्ट जो मैसेज आया ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, जब T1 मैसेज क्रिएट किया तब कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ और मैसेज प्रिंट हो रहा है ऑब्जेक्ट क्रिएटेड नंबर 1। ठीक है, काउंट +1 हुआ। नाउ ब्लॉक में एंटर हुए, तब हमने 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए T2 एंड T3। तो T2 के लिए कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ तो मैसेज प्रिंट हुआ ऑब्जेक्ट क्रिएटेड नंबर 2 एंड T3 भी क्रिएट हुआ तो उसके लिए कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ ऑब्जेक्ट क्रिएटेड नंबर 3। ठीक है, तो वो ब्लॉक क्लोज हो गया। देन एग्जिट फ्रॉम ब्लॉक, फिर से एग्जिट फ्रॉम ब्लॉक हुआ तब डिस्ट्रक्टर कॉल होना चाहिए फॉर T3 एंड T2, तो यहाँ पे मैसेज प्रिंट हुआ ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड नंबर 3 एंड ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड नंबर 2, राइट। फिर से मेन में आ गए हम, वहाँ पे हमने 4th ऑब्जेक्ट क्रिएट किया T4, सो उसके लिए कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ ऑब्जेक्ट क्रिएटेड नंबर 2, राइट, एंड एग्जिट फ्रॉम मेन। नाउ एग्जिट फ्रॉम मेन हो रहा है लेकिन यहाँ पे हमने गेट ch जहाँ पे लिखा है वहाँ पे स्टॉप हुआ है, अभी रिटर्न 0 होके एंड प्रोग्राम का टर्मिनेट होना बाकी है। तो जैसे ही हम की प्रेस करेंगे डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। अब वो मैसेज को देखना है तो हमें ऑल्टर 5, तब हमारा जो प्रीवियस आउटपुट है वो दिखेगा। नाउ प्रीवियस आउटपुट में देखो एग्जिट फ्रॉम मेन तक हमने देखा था, फिर 2 लाइन ऐड हो गई लाइक ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड नंबर 2 एंड ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड नंबर 1। तो यहाँ पे T1 और T4 के लिए डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ है। ठीक है, पहले जो डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ है वो T1 के लिए कॉल हुआ है एंड देन T4 के लिए कॉल हुआ है। क्लियर, फाइन। ठीक है, होप you understand this program. Now, if you have any query regarding constructor, destructor or example, you can message me. मैंने जितने भी टर्बो सी में प्रोग्राम करवाए हैं वो आपको घर पे करने हैं, एक नोटबुक में लिखने हैं. ठीक है, फाइन, थैंक यू.